Name of the chapter is Quality. This is the story of two brothers. They were doing the business of making shoes. So let's start. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. मैं उनको तब से जानता हूँ जब से वो मेरे फादर के बूट बनाते थे. ठीक है. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन में उनकी एक छोटी सी दुकान थी. द शॉप हैड अ सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैजलर ब्रदर्स. जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है, ऐसे ही उस दुकान पर और कुछ भी नहीं था सिवाय उस नेम बोर्ड के. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. कुछ डिस्प्ले पर वो बूट्स रखते थे फॉर एडवर्टीजमेंट. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made, seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. वो अपनी कला में, अपने आर्ट में इतने माहिर थे कि जो वो बूट्स बनाते थे वो कभी भी मिसफिट नहीं होते थे. I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer, given to sudden smile from out of the redness of his beard, isn't art. मतलब कि ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, बिकॉज उनके लिए ये उनका क्राफ्ट था. वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे शूज़ बनाने में. इट वॉज़ नॉट द पॉसिबल टू गो हिम वेरी ऑफन. मतलब वो उनके पास ज़्यादा समय नहीं जाते थे बिकॉज़ वो बूट्स इतने ज़्यादा उनके लॉन्ग लास्टिंग होते थे. One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair waited. A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent, in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some ड्रीम ऑफ बूट्स. मतलब कि उनकी अपीयरेंस जो थी वो इतनी पीसफुल थी, उनकी शॉप की जो अंदर डेकोरेशन थी इतनी पीस से भरी हुई थी जैसे कि वो किसी चर्च में आ गए हों. ठीक है. वो थोड़ा सा बेंट करके चलते थे, एक एप्रन पहना होता था उन्होंने, और बिना कोट के होते थे. मतलब कोट जो है वो कौन से लोग पहनते हैं, जिनकी लाइफ बहुत ही ईजी होती है, और जो कोट नहीं पहनते वो बहुत मेहनत का खाते हैं. And I would say, how do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? उसने पूछा कि आप मुझे रशियन लेदर के बूट्स बना कर देंगे. Without a word he would leave me retiring whence he come, or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back, holding in his hand a piece of gold brown leather. With eyes fixed on it, it would remark, "What a beautiful piece." When I too had admired, he would speak again, "When do you want them?" मतलब कि वो जब भी उनको एक ऑर्डर मिलता था वो तब ही शूज़ बनाना शुरू कर देते थे. बहुत ज़्यादा मेहनती थे वो. ठीक है. तो वैसे ही जैसे पूछते थे कि आपको किस तरह का बूट चाहिए, उसी तरह की वो लेदर का यूज़ करते थे. And he would say, "Tomorrow fortnight," or if he were his elder brother, "I will ask my brother." वो दोनों ब्रदर्स बूट बनाने का काम करते थे और ऑर्डर को उसी टाइम पर फिनिश कर देते थे जब कस्टमर को चाहिए होता था. Then I would murmur, "Thank you. Good morning, Mr. Gessler. Good morning." He would reply, still looking at the leather in his hand, and I moved to the door. I would hear the tip-tap of his slippers going up to the stairs to his dream of boots. बूट वो अपस्टेयर्स पर जाके बनाते थे. ठीक है. जब वो वहाँ से चल के जाते थे तो वहाँ पर वुडन फ्लोर था, और वुडन फ्लोर के ऊपर शूज़ की टिप टैप की साउंड नरेटर को, यानी कि जो ये स्टोरी नरेट कर रहा है उसको, साफ साफ सुनाई देती थी. I cannot forget that day on which I had spent occasion to say him, "Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know." उसने उसको एक शिकायत की कि जो लास्ट पेयर था जो आपने बनाया था वो थोड़ा सा डैमेज हो गया. ठीक है. फिर उसको सुन के उसने बोला, ही लुक्ड एट मी फॉर
a time without replying, as if expecting me to withdraw or quality the statement. Then said, I shouldn't, or Greek. It did, I'm afraid. You got them wed before they found themselves. I don't think so. At that, he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back. मतलब send them back. ठीक है, ये उनकी नेटिव लैंग्वेज है, इसीलिए ये आपकी बुक में साइड पर दी हुई है इन सिंपल इंग्लिश. Zom boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nodding with them, I take them off your bill. मतलब उसने जो कंप्लेंट की वो एकदम से बोला कि वो वाले बूट आप मुझे दे दो रिपेयरिंग के लिए, ठीक है. अगर मैं उनको रिपेयर ना कर पाया गलती से तो मैं आपको उसकी पेमेंट बैक कर दूंगा, मतलब कि आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे. Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." एक बार की बात है, नरेटर जो है, ऑथर जो है, वो गया उसके पास बूट लेने. इमीडिएटली बूट चाहिए थे उसको, कहीं पर जाना था उसने, लार्ज फर्म, मतलब कि किसी बिजनेस मीटिंग के लिए ऑफ कोर्स उसने जाना होगा. तो उसने जो उस टाइम बूट पहने हुए थे वो बहुत इन्फीरियर क्वालिटी के थे, मतलब उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. तो वो गेज़लर ब्रदर ने उसको बोला कि ये मेरे बनाए हुए बूट नहीं है. द टोन वॉज नॉट ऑफ द एंगर नॉर ऑफ सोरो, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट. But there was in something quite that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. और उसने उस बूट को देखकर ना तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया, उसकी फीलिंग ऐसी थी कि उसने क्या किया कि जहाँ पर ऑथर को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था बूट पर, उसी जगह पर उसने अपनी फिंगर को प्रेस किया. In words you dare, he said, those big firms have no self-respect. And then, as if something had given way with him, he spoke long and bitterly. It was the only time I have heard him discuss the conditions and hardships of his trade. They got it all. He said they get it by advertisement, not by work. वो अब उन फर्म्स और कंपनीज़ की बात कर रहा है जो कि एडवर्टाइज़ करती हैं अपनी कंपनी के बारे में, अपने बूट्स के बारे में बहुत ज़्यादा, बट उनमें क्वालिटी नहीं होती. वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था इन बातों को लेकर, बिकॉज़ वो अपने आर्ट को ऐसे बेचता नहीं था, ठीक है, एडवर्टाइज़ कभी भी नहीं करता था वो. एवरी ईयर इट गेट लेस, you will see. And looking at this lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs that seemed suddenly in his red beard. मतलब कि वो अब अपने स्ट्रगल के बारे में बता रहा है कि मैं अपने क्राफ्ट के ज़रिए चाहे जितने भी अच्छे बूट्स बनाता हूँ, बट उससे मुझे इतनी ज़्यादा कमाई नहीं हुई कि मैं कभी अपनी लाइफ को जी सकूँ, मतलब उसको खुलकर पैसे खर्च कर सकूँ. As best I could, I explained the circumstances of these ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. अब क्या हुआ, उसकी इस कंडीशन के बारे में सुनकर ऑथर ने बहुत से पेयर्स ऑफ बूट्स ऑर्डर कर दिए, ठीक है. अब वो उसके बूट्स जो है वो बहुत देर तक चल गए, ठीक है, इसीलिए वो उसकी शॉप पर नहीं गया कितने टाइम से. तो वो एक बहुत सारे मंथ के बाद आया और उसने उस शॉप को विज़िट किया. वेल मिस्टर गेज़लर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी. आई एम प्रीटी वेल, मतलब कि आई एम प्रीटी वेल, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ. ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड. उसने बोला कि जो मेरा एल्डर ब्रदर था, ही इज़ डेड, ही इज़ नो मोर. एंड आई saw that it was indeed himself, but how aged and man. And never before I had heard him mention his brother.
Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry." उसको लगा कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, और उसको ये भी लगा कि ये जो पहले था वो मुझे पहले बड़ा लगता था, बट उसका जो एल्डर ब्रदर है वो कोई और था, ये यंगर वन था। ठीक है। "Yes," he answered. "He was a good man. He made a good boot, but he is dead." And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother. मतलब कि वो जो है ओल्डर वन था, यंगर वन था, वो बिल्कुल ओल्डर वन की तरह ही हो गया था। छोटा भाई बड़े भाई से काफ़ी रिजेंबल करता था, उन दोनों की शक्लें भी मिलती थी और अब उनके हालात भी मिलते थे। वो उसको कैसे पता चला? क्योंकि उसके भी बाल बहुत पतले हो गए थे, सिर पे बहुत कम हो गए थे, और वो भी ज़्यादा वाइट कलर के थे, मतलब कि वो अब ओल्ड होता जा रहा था। I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. अब वो उन pairs of boots को लेकर abroad चला गया। It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to my old friends. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. अब वो उस आदमी से तब मिला जब उसकी एज 75 ईयर्स की हो गई थी, 60 से, मतलब कि वो कितने ईयर्स के बाद आया? 15 ईयर्स के बाद। "Do you want any boots?" he said. "I can make them quickly. Is it a Zack time?" I answered, "Please, please, I want boots all around, every kind." मतलब मुझे बहुत से तरह के बूट्स चाहिए। उस 75 ईयर्स ओल्ड के आदमी ने उससे पूछा, ठीक है, पूछ के उसे बूट बनाने स्टार्ट कर दिए। I had given those boots up when one evening they came. One by one I tried them on, in shape and fit, in finish and quality of leather. ठीक है, अब वो बूट्स को एक एक करके ट्राई करके देख रहा था, जो भी उसके बने हुए मिले थे उसको, और उसने एट वंस एक चेक लिखा और उस आदमी को रिटर्न कर दिया। ओके। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted, but when I came to where his shop had been, his name was gone. अब क्या हुआ? अब उसने सोचा कि मुझे इन बूट्स के लिए उस आदमी का थैंक्स करना चाहिए जिसने इतनी मेहनत करके मुझे ये ऑर्डर प्लेस किया। ओके, तो जब वो वहाँ पर गया, वहाँ उसकी शॉप पर वो जाकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया, क्योंकि वहाँ पर क्या था, उनकी जो गेज़लर ब्रदर्स नाम का बोर्ड लगा हुआ था शॉप का, वो उतर चुका था, और वहाँ पर उसको कोई और ही मैन मिला। ठीक है, तो उसके साथ उसकी जो कन्वर्सेशन हुई, "Mr. Gessler in?" I said, "No, sir." He said, "No, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over." कि हमने ये शॉप ले ली है, आप जो भी कहेंगे हम आपकी बात सुनेंगे और आपके लिए आपकी हेल्प करेंगे। "Yes, yes," I said, "but Mr. Gessler." अब वो मिस्टर गेज़लर के बारे में पूछ रहा है, तो उस आदमी ने बताया, "Dead, but I only received these boots from him last Wednesday week." उसने बताया कि वो जो आदमी है वो पुअर मैन है, उसकी डेथ हो चुकी है। आई सेड, "पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ." इन दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है अब। ठीक है, उसने अब उसको बताया कि वो भूखा रहकर उसकी मौत हुई है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्टार्व हो गया था वो, ओल्ड लॉन्ग स्टारवेशन थी उसकी, मतलब वो लंबे समय तक कुछ खाता पीता नहीं था, हमेशा बूट्स बनाने में बिज़ी रहता था, और ना ही पीपल उसको इतने पैसे देते थे कि वो आराम से बैठकर अपना खाना खा सके। मतलब जितना वो आर्ट करता था, उसका आर्ट वर्क था बूट बनाने का, उतना उसको कभी उसकी मेहनत के पैसे नहीं मिले, नहीं तो वो अपनी जो ओल्ड एज है वो थोड़ी रेस्ट करके बिताता, वो अपने एंड की सांस तक काम ही करता रहा। पीपल वॉन्ट वेट, ये एक ही लाइन से आपको पता चल जाता है कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो अपने ऑर्डर के लिए वेट नहीं करते, इसीलिए उसको अपना ध्यान रखे बिना बिना कुछ खाए पिए वो ऑर्डर्स तैयार करने पड़ते थे ताकि उसको खाने के लिए पैसे मिल सकें। ठीक है, बट स्टारवेशन दैट मे बी अ बिट फ्लारी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। वो दिन रात मेहनत करके बूट्स ही बनाता रहता था, टू द वेरी लास्ट यू सी, मतलब कि आपको भी पता है कि वो अपनी लास्ट ब्रेथ तक
बूट ही बनाता गया, बिकॉज 75 ईयर्स ऑफ एज कम एज नहीं होती है लगातार बैठकर काम करने के लिए। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर। वो घटिया लेदर का यूज़ नहीं करता था, लोगों को धोखा नहीं देता था बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जैसे। उसके पास जितने भी पैसे होते थे वो तो या तो दुकान का रेंट देता था और या तो अच्छा लेदर खरीदने में लगा देता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मतलब कि वो कैसे जिया इतनी ज़्यादा एज ये मुझे नहीं पता, बट वो जितना भी जिया अपने आर्ट वर्क के लिए ही जिया। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, मतलब कि वो इतने ज़्यादा पैसे रेंट में ही दे देता था और लेदर खरीदने में पे कर देता था, उसके पास आग जलाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। He was a character, but he made good boots. Yes, I said he made good boots. मतलब कि लास्ट में उन्होंने अपनी कन्वर्सेशन का एंड कैसे किया, उसके बूट्स की आर्ट की तारीफ़ करके। ठीक है, इसमें हमें क्या पता चलता है कि लोग जो हैं वो अपने हमेशा काम के लिए ही जाने जाते हैं। ठीक है, अगर वो वैसे ही कंपनीज़ के जैसा होता जो एडवर्टाइज़ करता अपने बूट्स को, बट वो लेदर गलत यूज़ करता, तो लोग उसके जाने के बाद उसकी बहुत ही बुरी बातें करते। बट अब मिस्टर गेज़लर नहीं रहे और उनका आर्ट वर्क उसके पास रह गया। ठीक है, क्योंकि उसने काफ़ी सारे बूट्स ऑर्डर किए थे और वो बूट्स अभी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे, उसको फिट भी थे, कंफर्टेबल भी थे। तो वो अब उसके मरने के बाद भी उसकी तारीफ़ ही कर रहा है, उसके काम की तारीफ़ कर रहा है। मतलब कि हमें भी ऐसे काम करने चाहिए कि जब हम कभी ना भी रहें तो हमारे कामों की लोग अच्छी बातें करें, ना कि बुरी।